Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 3 in your NCERT book. The chapter name is Fiber to Fabric. In previous classes we understand about what is fiber and how the type of fiber. First one natural fiber and second is synthetic fiber. Okay, in class 6th we discuss about this natural fiber. Natural fibers are we get from plant and animal. In yesterday class we discuss about the cotton and jute. In 6th class we discussed here only plant fiber. Example of plant fiber is cotton and jute. We discuss about the how we get the jute cotton fiber and how we get a jute fiber. Okay, we get a cotton fiber where cotton ball, fruit of cotton plant is called a cotton ball, or where we get a jute fiber, we get jute fiber from a stem of the jute plant. Okay, then after we discuss also a ginning process, and then after we discuss spinning process. Okay, the process of making yarn from fiber. yarn जो है धागा जो बना रहे हैं, थ्रेड जो बना रहे हैं from fiber से is called the spinning. Whenever we doing this spinning, we use a takli, we use a charkha, and nowadays we using a machines. Okay, and today class our new topic is yarn to fabric. How yarn make a fabric. Okay. There are many ways by which fabrics are made from yarn. The two main process of weaving and knitting. First one क्या है weaving and second is knitting. Weaving and knitting. Okay. So first is weaving. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of a two set of a yarn arranged together, and the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called a weaving. Let us try to weave some paper strips. देखिए टू सेट ऑफ yarn का मीनिंग जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक वीडियो भी देखा था, आपने देखा था कि थ्रेड्स जो है एक हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स है और एक वर्टिकल थ्रेड्स है, उनको आपस में अरेंज करके हम क्या फॉर्म करते हैं बेटा, फैब्रिक फॉर्म करते हैं. ओके, Let us try to weave some paper strip. इसी प्रोसेस को हम पेपर स्ट्रिप से करके देखते हैं ना, क्योंकि घर पे तो हमारे इतने बड़े बड़े लूम्स हैं नहीं जिनमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थ्रेड्स को अरेंज करके सीख सके. तो एक शॉर्ट एक्टिविटी है ताकि आपको थोड़ा सा वीविंग प्रोसेस क्लियर हो. ओके, वीविंग प्रोसेस की डेफिनेशन एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ. आई रिपीट अगेन दिस डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn together. The process of arranging two set of yarn together to make a fabric. दो सेट को आपस में अरेंज करना और फैब्रिक को मेक करना is called a weaving. Okay, let us try to weave some paper strip. अब पेपर स्ट्रिप से हम इस प्रोसेस को करके देखें. एक्टिविटी 5. टेक टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर. डिफरेंट कलर यूज ले ताकि हमें क्लियर हो कि कौन सी स्ट्रिप को हम कहाँ यूज करें. अगर सेम होगी ना तो क्लियरली विजिबल नहीं होगा. इसी वजह से हमें डिफरेंट स्ट्रिप्स लेनी है, नहीं तो आप एक सेम कलर की स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हो. ओके, कट स्क्वायर ऑफ लेंथ एंड विद इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फॉर ईच शीट. और हर शीट को आपको 30 सेंटीमीटर कट करना है. नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ. दोनों शीट को बिल्कुल इस तरीके से हाफ. लुक एट दिस पिक्चर ए एंड बी. फर्स्ट रेड एंड ग्रीन, दोनों स्ट्रिप्स को इस तरीके से हाफ कट करना है. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन फिगर. अब आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से देखो, लुक एट हियर, लाइंस ड्रॉ कर उसको सीजर की हेल्प से कट किया है एक स्ट्रिप को, द ग्रीन वन. ओके, एंड अदर एज शोन फिगर, कट द बोथ शीट अलोंग द डॉटेड लाइन एंड अनफोल्ड, वीव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन दिस फिगर. ओके, आपको भी क्लियर नहीं हो रहा होगा कि कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ. वी डिस्कस दिस पॉइंट इन अ वीडियो. आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस हैपन. ओके, और नाउ this is your activity. You do it in your home and show me in next class. Okay.
that's all about the weaving. Okay, I think you I hope you all are understand very well how this activity happen. Okay, तो इस वीडियो के अंदर देखो आपको पेपर स्ट्रिप्स फर्स्ट वन की पूरी सेपरेट कर दी थी, जिससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। आप उस वीडियो में भी देख सकते हो ना। तो आपको क्या करना है, ग्रीन शीट के कॉर्नर्स को कट मत करना, बिल्कुल सेंटर से स्ट्रिप्स लेना, ठीक है। देन उस जो ये ऑरेंज कलर का पेपर है उसकी जगह पर आप जिस भी कलर का पेपर यूज कर रहे हो, देन यू पुट दिस एंड देन सेंड इट टू मी दिस एक्टिविटी। ओके, ओके क्लास, आई थिंक वीविंग प्रोसेस क्लियर हुआ। ये तो पेपर स्ट्रिप्स से हुआ वीविंग प्रोसेस, ठीक है। नाउ वी मूव टू अ just similar they we discuss about that in previous class and video। आपने देखा तो वो थ्रेड्स को लंबे लंबे थ्रेड्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली अरेंज करते हैं। तो वो जो आपने पूरी मशीन देखी थी उसे क्या बोलते हैं बेटा, लूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूम्स बोलते हैं। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ yarn, अब जैसे हमने पेपर स्ट्रिप यूज की थी, वेयर वी यूज अ yarn यानी थ्रेड को यूज करेंगे, एंड वूवन टू मेक अ फैब्रिक, आपस में उसको यूज करके फैब्रिक को मेक करेंगे। देन the yarn are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms। ये जो मशीन है, ये जो लेडी बैठी है ना, देखो यहाँ पर ही, तो ये क्या है, लूम्स है। The looms are either hand operated and power operated। ये जो looms है ये hand operated है। आपको पिक्चर में एक लेडी करते हुए दिखाई दे रही है, तो ये वाला लूम कौन सा है, hand operated है। जस्ट लाइक दैट, इसी तरीके से पावर ऑपरेटेड भी होते हैं, जो खुद अपने ये जो फंक्शन जो लेडी कर रही है वो अपने आप मशीन्स के थ्रू किया जाता है। Okay, next process is knitting. Okay, have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn used to make a piece of fabric। आपने अपने घर पे या अपने आसपास में नेबर्स में या अपनी नानी या दादी को, ग्रैंड मदर्स को देखा होगा कि वो निटिंग करके एक पूरी स्वेटर बनाते हैं। लेकिन स्वेटर बनाने से पहले जब वो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो क्या कोई फैब्रिक होता है उनके पास? नहीं ना, सिर्फ क्या होता है, वूल होती है, वूल yarn होता है। ओके, तो उस वूल yarn को निटिंग प्रोसेस के थ्रू पूरी स्वेटर में कन्वर्ट करते हैं, शाल में कन्वर्ट करते हैं, मफलर में कन्वर्ट करते हैं ना। तो मींस एक yarn से क्या बना रहे हैं, निटिंग प्रोसेस से फैब्रिक बना रहे हैं। फैब्रिक किसको बोल रहे हैं, मफलर को, स्वेटर को, शाल को, इन सब चीज, ये सब चीजें क्या है, फैब्रिक है। ओके, यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ torn pair of sock? The what happen, आपका कभी ना सॉक्स का कोई एक धागा या ऐसे रिलीज हो रहा होता है, तो आप उस धागे को खींचते रहो तो पूरा धागा लाइन टू लाइन आता रहेगा। वो जो वीविंग हुआ हुआ है, नेटिंग हुई हुई है, वो सारी पुल्ड आउट हो जाएगी। ओके, the single yarn get pulled out continuously as the fabric get unrolled। Socks and many other clothing items are made up of a knitting fabric। Knitting is done by hand and also on machine। knitting भी hand के through और मशीन्स के थ्रू कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। क्लास लुक एट दिस वीडियो। इस प्रोसेस में निटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि ये जो निटिंग और वीविंग है ना, जितना वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, उतना लैंग्वेज में अपन इतना प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ना। आपको देखकर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हाउ निटिंग प्रोसेस इज डन, हाउ वीविंग प्रोसेस इज डन। ठीक है, Today we will see how yarn is converted into basically weaving and knitting. So first we will talk about weaving. Making of fabric or cloth by interlacing two sets of yarn together. Basically इस प्रोसेस में दो yarn को एक साथ अरेंज किया जाता है किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए. So by, as you can see, threads are called warp. If you अब बेसिकली ये डिवाइस वार्प के नेक्स्ट प्रोसेस इज knitting. It is a process of making a fabric by interlocking loops of a single yarn with the help of needles or machines. So in this process we arrange single yarn to make fabric, and the best example of this is knitting sweater. You must have observed that your mom or grandmother used to do knitting. What they used to do? They simply knit the single yarn of wool with the help of needles. Now there are various types of knitting fabric
like socks, cap, sweater, etc. And these are some structure made in knitting process. Now weaving and knitting दोनों similar है because अरेंज किया जाता है, वो एक साथ अरेंज किया जाता है. And Okay, class, are you understand about what is weaving and knitting process? Really want to know if you have seen any fabric that are made of the fiber on the outer covering of coconut. What are these fiber normally used for? उन्होंने वो ऐसा देख रही हैं कि कुछ क्लोथ्स जो हैं कोकोनट फाइबर के भी बने होते हैं. तो यस, वो भी क्या है बेटा, फाइबर है. वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड टू मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम. ये जो फैब्रिक्स हैं इन्हीं से डिफरेंट टाइप के जो भी क्लोथिंग है हम घर पर, जहां पर वही कारपेट है, ब्लैंकेट है, पिलोज हैं, कर्टेन है, हमारे हम जो भी कपड़े पहनते हैं, स्कर्ट वगैरह जो भी है, तो सब क्लोथिंग आइटम्स जो हैं फाइबर से ही मेडअप होते हैं. तो आपको निटिंग एंड वीविंग क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज निटिंग? निटिंग क्या हुआ? सिंगल एंड yarn को यूज कर रहे हैं टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. इन निटिंग वी यूज इंटरलॉकिंग द लूप. क्या कौन सा प्रोसेस होता है? हर लूप को इंटरलॉक किया जाता है एक दूसरे में. तो इंटरलॉकिंग द लूप ऑफ सिंगल yarn विद निटिंग नीडल और मशीन. निटिंग नीडल के थ्रू और मशीन के थ्रू हो रहा है, तो मशीन्स के थ्रू. ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. Have you ever wondered what material peoples used in ancient time for clothes? वही जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, क्या ह्यूमन स्टार्टिंग से क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर दिया था? It appeared that in those time people used the bark and big leaves of tree or animal skin उस time and fur of cover themselves. तो क्या करते थे उस टाइम पे लोग? They wear, that time they wear what they wear? Bark मीन्स पेड़ की जो छाल होती है ना, बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है वो, एंड बिग लीव्स एंड एनिमल स्किन्स और एनिमल फर को अपने आप को कवर करने में यूज करते थे. आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने सेटल डाउन होना, एक जगह पर रहना स्टार्ट किया, वहीं पर ही क्रॉप को प्रोडक्शन करना स्टार्ट हुआ. तो दे लर्न विविंग, क्लोइंग एंड ग्रास इनटू मैट्स. अभी आपने जो विविंग प्रोसेस किया था ना, वो तो हम पेपर स्ट्रिप से कर रहे थे. तो उस टाइम पे लोगों ने जो टहनियां हैं या ब्रांचेस हैं वो, या छोटी छोटी टहनी होती है ना, उसको ट्विंग बोलते हैं. तो उन ट्विंग्स को, ग्रासेस को आपस में वीविंग मेथड के थ्रू मैट बनाना स्टार्ट किया, देन बास्केट्स बनाने स्टार्ट किए. तो यस, एनिमल फ्लीस हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर एंड लॉन्ग थ्रेड. और वो क्या करते थे, एनिमल फ्लीस या हेयर जो भी है उनको आपस में ट्विस्ट करके, जैसे हमने रीड किया कि फाइबर को टर्न कर रहे हैं हम किसके अंदर, yarn और थ्रेड के अंदर. ठीक है, तो आपस में ट्विस्ट करके लॉन्ग स्ट्रैंड बनाते थे. दीज आर वोवन इनटू अ फैब्रिक. और धीरे धीरे फिर वो उसको टर्न करने लगे किसमें? फैब्रिक में. द अर्ली इंडियंस होम फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन. दे ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर. सबसे पहले जो फाइबर डिस्कवर हुआ तो कौन सा यूज करते थे? वो कॉटन यूज करते थे, जो नियर गंगा के आसपास का जो एरिया था वहां पर उसको ग्रो कराया था. Then after flax is also a plant that gives natural fiber. Flax भी एक type है natural fiber का. In ancient Egypt, cotton as well flax were cultivated near the river Nile, were used for making fabrics. In those days stitching was not known. उस टाइम पे स्टिचिंग तो होती नहीं थी, तो people simply ड्रैप द फाइबर अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. तो सिंपल वो एक बड़ा सा फैब्रिक बनाते थे और उसको अपने चारों तरफ लपेट लेते थे, रैप कर लेते थे. ओके, मेनी डिफरेंट वे टू ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड with the invention of a sewing needle. अब बाद में needle का invention हुआ. Then after उन्होंने stitching start की, people started stitching fabric to making clothes. Fabrics को make clothes में make करने के लिए stitch clothes have gone through many variations since the invention. But is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi और turban is used as a unstitched piece of fabric. अभी भी हम काफी unstitched cloth पहनते हैं. जैसे साड़ी है तो उसको कहीं से भी stitch करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. धोती हो गया, एक टर्बन क्लोथ होता है, वो भी एकदम फैब्रिक, डायरेक्ट फैब्रिक होता है, कहीं से उसको स्टिच करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, तो जस्ट देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड इटन ऑल ओवर द कंट्री. ए लार्ज वैरायटी एक्सिस्ट आल्सो इन फैब्रिक. जैसा हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर हर एरिया में डिफरेंट टाइप का फूड ईट करते हैं, है ना. सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने रीड किया कि भाई साउथ में इडली डोसा खाया जाता है, पंजाब में मक्के की रोटी सरसों को ईट किया जाता है ना, राजस्थान में दाल बाटी, इस तरीके के फूड होते हैं. तो हर वो एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अवेलेबल है. हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में हमने अंडरस्टैंड किया.
है। ओके, तो ये यहाँ पर ही बात करें, जैसे हर कंट्री का या हर एरिया का जो फूड है वो डिफरेंट होता है, सेम वैसे ही हर एरिया का जो फैब्रिक है या क्लोथिंग आइटम है वो भी उसमें भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है। जैसे आपको पता है पंजाबी लोग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, गुजराती लोग अलग टाइप के, राजस्थानी लोग अलग, हरियाणा के अलग, साउथ इंडियन है जो अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। तो जितनी वैरायटी फूड की प्रेजेंट है उतनी वैरायटी क्लोथिंग आइटम की भी प्रेजेंट है। ओके, that's all about this, and I think you all are understand about this. First one is cotton roll prepare hoga, then after ginning it convert into a fiber, and due to the process of spinning it turned into a yarn and thread, and then after yarn through a weaving process and through a knitting process it convert into a fabric. Okay, that's all about this chapter. I hope you all are understand this chapter. Okay.